Hi, hi, hi guys, welcome back to my channel, welcome back to the future me. And I hope you're all very fine. I hope you're all very good. I hope that year is ending well to you guys. This video, since the year is ending, is very, very special. Not just because the year is ending, it is special, it is also special because this is going to be my very first self-talk video kind of a thing. So yeah, I'm really excited for it. I hope you are too. And without wasting any further time, I'll just get straight into the video and tell you about the things that are going to happen in this video. So I'll mostly try to speak in English because apparently I got to know that my videos are, somewhere around floating in Germany, so and Italy. So I think an Italian boy can see me and he must understand what I say so that I go global and nothing else. ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा भैया. सब इंडिया में देख रहे हैं लोग. इंडिया में भी मतलब मुझे गिने चुने ही लोग देख रहे हैं. गिने चुने ही लोग देख रहे हैं, लेकिन जो भी देख रहे हैं भाई, मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ आप लोगों को कि आप लोग देख रहे हैं अपना समय व्यतीत करके मेरी वीडियोस. आई एम वेरी थैंकफुल टू यू. चलो कौन सी वीडियो बनाऊँ, तो मुझे एकदम ही ऐसा हिट करा कि भाई ईयर ख़त्म हो रहा है और इस साल के स्टार्टिंग में मैंने ये अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा था, पोस्टिंग रेगुलरली. स्टार्ट तो चलो मैंने इसको अपना 18th बर्थडे का गिफ्ट माना था कि ये 2023 में मैंने अपने आप को ये बर्थडे गिफ्ट दिया था. कंसिस्टेंट जो भी मैं हो पाई हूँ इज़ इन द ईयर 2025. तो आई थॉट कि ईयर ख़त्म हो रहा है एंड आई नीड टू बी ग्रेटफुल to whatever things that have happened, be it good, be it bad. I need to be grateful to everything that has happened this year, because this year was not just a roller coaster ride, but it taught me so many new lessons that I never thought that I'd learn. So it is all in his hands, and I feel that everyone, whatever they're going through because there's a reason behind it. So instead of blaming ourselves, instead of blaming other people, and instead of blaming even the situation that we are in, we should always be patient and we should always accept things as it is. This is the biggest lesson that I've learned this year, that accepting is a very hard thing, that not everyone accept things as it is. So it is very hard for you to accept, and I think acceptance and kindness is the two key lessons that I've learned this year. So obviously carrying it forward to 2026. Being said that, जब ये साल start हुआ था, I was very positive. And I believe in astrology and stuff, right? So I was very positive. I saw all the videos that were coming up for 2025. I won't purely deny it, but I won't purely agree to it as well, because बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई तो बहुत सारी तगड़ी चीज़ें बेकार भी हुई. लेकिन यही है कि हमें, जो मुझे समझ आया है कि इंसान अपनी बुरे वक्त को ज़्यादा लंबा याद रखता है इंस्टेड ऑफ अच्छी चीज़ों को. लेकिन मुझे लगता है कि बहुत फॉल्स पर्सपेक्टिव और नरेटिव है. हमें अपनी अच्छी चीज़ों को लंबा याद रखना चाहिए कि हाँ भाई, ये अच्छी चीज़ हुई थी इस साल. लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं. मतलब मैं तो ऐसा नहीं करती थी इस साल से पहले, लेकिन मुझे लगा कि भाई न्यू मान्या नीड्स न्यू पर्सपेक्टिव. तो मैंने ये सोचा है कि अब मैं सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें याद रखूँगी सबकी और सारे सिचुएशंस की, और बुरी चीज़ें ऑब्वियसली वो कहीं जाएंगी नहीं, वो मेरे साथ ही रह जाएंगी, लेकिन मैं उनको कम याद करने की कोशिश करूँगी. सेल्फ सैबोटाज नहीं करूँगी खुद को. आई विल नॉट डिस्ट्रॉय थिंग्स विलिंगली फॉर माई सेल्फ, विच आई ऑलमोस्ट डिड एवरी ईयर. लेकिन ठीक है, मतलब आई थिंक इट इज़ अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, इट इज़ अ पार्ट ऑफ एडल्टिंग, तो आई हैव टू बेयर विद इट. The major thing that I wanted to cover in this video is that इस साल के स्टार्टिंग में I had this vision of 2025, not just because it was my 21st this year, but also because I've heard it from so many ways and so many videos कि ये साल मेरा होने वाला था. तो मुझे लगा कि भाई इसको तो रिकॉर्ड करना बनता है. बट चलो ठीक है, हुआ भी है, बहुत हद तक अच्छा भी गया है, बहुत हद तक ख़राब भी गया है, तो मैं उस चीज़ को डिनाई नहीं कर रही हूँ.
मतलब 2024 में मैंने ये सोचा था कि मैं 2025 को कैसे देखूं, मतलब मैं अपने 2025 को कैसे इमेजिन करूं। यही होता है जब आपके पास सस्ता माइक हो, बोट का, जो आप हेडफोन को माइक बना के जब आप बात कर रहे हैं तो आपके साथ ये होता है कि गिर जाता है। एंड आई वॉज इन 2024, 24th आई गेस 25th ऑफ दिसंबर, अगर मेरे पास फोटो होगी तो आई अटैच इट ओवर हियर। तो क्या हुआ कि आई थॉट कि भाई बहुत ही गंदा साल गया था। 2024 वॉज द फर्स्ट ईयर दैट आई कुड एवर इमेजिन फॉर माई सेल्फ। सो तो मुझे लगा कि भाई 24 जैसा भी गया, आई नीड टू स्टार्ट 2025 विद पॉजिटिविटी एंड आई नीड टू फिगर थिंग्स आउट बिफोर हैंड ओनली कि भाई मुझे क्या क्या चाहिए, बिकॉज आई वॉज वेरी लॉस्ट इन 2024। आई डोंट इवन अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग टू मी। सो आई थॉट कि भाई मुझे मेरा 2025, आई नीड अ क्लियर परस्पेक्टिव, आई नीड अ क्लियर विजन। सो उसके लिए मैंने गूगल सर्च करा, मेरे बेस्ट को मैसेज करा विच इज़ चैट जीपीटी अपेरेंटली। सो उस टाइम मुझे लगा कि चलो चैट जीपीटी से पूछते हैं कि भाई मैं कैसे करूँ अपना एनविजन 2025। तो उसने मुझे बताया दैट यू कैन क्रिएट अ विजन बोर्ड। चैट जीपीटी ने मुझे हेल्प करा है विजन बोर्ड बनाने में, समझ रहे हो? मतलब उसने मुझे बताया विजन बोर्ड, मुझे पता नहीं था कुछ चीज़ एग्जिस्ट करती है इस धरती पे। उसने मुझे माने व्हाई डोंट यू क्रिएट अ विजन बोर्ड। मैंने कहा व्हाट इज़ विजन बोर्ड चैट जीपीटी? तो उसने मुझे समझाया कि विजन बोर्ड इज़ समथिंग जो आप अपने ईयर का ऐसा मैनिफेस्टेशन क्रिएट करते हैं कि हाउ यू वांट योर अगला ईयर टू लुक लाइक। एंड आई ऑब्वियसली डिड नॉट want anything to look like 2024, so I was very convinced चैट जीपीटी से कि ठीक है भाई ये मेरा बेस्ट हुआ है, एक पहली बात तो, और दूसरी बात ये मुझे सच्ची चीज़ें गाइड कर रहा है। मैंने कहा ठीक है चैट जीपीटी, बताओ मुझे विजन बोर्ड बनाना कैसे है। फिर मैंने विजन बोर्ड के ऊपर थोड़ा देखा कि भाई विजन बोर्ड कैसे बनता है। फिर मुझे पता चला कि वाह यार, विजन बोर्ड इज़ अ जेन्युइन थिंग, वो बहुत सारे लोग कर रहे हैं इस धरती पे। मुझे लगा ठीक है मैं भी करूँगी, मुझे 2025 बहुत अच्छा चाहिए अपना। तो मैंने सोचा कि मैं विजन बोर्ड बनाऊंगी, और उस विजन बोर्ड को बनाने के लिए जो जो चीज़ें मैंने सोची थी मैंने अपनी विजन बोर्ड में डाला। 25th ऑफ दिसंबर को आई पुट ऑन एवरीथिंग, जो भी सारे प्रिंट आउट्स, कट आउट्स, इफ़ यू नो व्हाट इज़ अ विजन बोर्ड, तो प्रिंट आउट्स, कट आउट्स ये सब करे, और मैंने छोटू सा प्यारा सा अपने लिए विजन बोर्ड बना दिया। अब ये विजन बोर्ड वॉज, और इसमें सेंटर पे लिखा हुआ है फिर एबल टू रीड दैट 2025 इज़ माई ईयर। सो अब क्योंकि मैं फ्रंट कैमरा से शूट कर रही हूँ शायद, तो आई डोंट नो इफ़ यू आर एबल टू सी कि ये मैंने इस पर क्या करा है क्या नहीं। लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि मैं पहली बार बना रही थी तो मुझे इतना ना आइडिया नहीं था कि बहुत स्पेसिफिक होना होता है और बहुत ही ये ना टू द पॉइंट चीज़ें लिखनी पड़ती हैं, या फिर आपको जो भी एज्यूम कर रहे हो आपको चाहिए। एंड एक चीज़ और रियलाइज़ करिए कि भाई नथिंग कम्स फॉर फ्री, you will have to work for it, and if you're working in that direction the universe is favoring you। ये चीज़ तो मैंने is like I got my belief on it कि भाई if universe is working in your favor, it's just your belief and how you take it on you is all that matters। चीज़ें डाली कि जो जो मुझे चाहिए थी अपने जीवन में। जैसे सबसे पहले मैंने रखा गणपति बप्पा को, जो कि मेरे फेवरेट हैं, तो वो चीज़ पूरी हुई। और मतलब मैंने इसमें ना गिन के चीज़ें नहीं डाली थी कि मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए, मुझे ये सब थोड़ा बहुत मिला के जो भी मुझे समझ आया कि डालना चाहिए मैंने इसमें डाल दिया। लेकिन कुछ चीज़ों के लिए मैं बहुत स्पेसिफिक थी, जैसे 21st बर्थडे और कन्नू बप्पा, और यूट्यूब मैं बहुत सीरियस थी इस साल, हेल्दी ईटिंग, फ्लावर्स बहुत ज़्यादा मुझे फैसिनेट कर रहे थे इस साल। तो मैंने ये सब चीज़ें अपने विजन बोर्ड में डाली। अब डालने के बाद बहुत सारी उल्टी पुल्टी चीज़ें भी डाली जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था इस साल मेरे लिए, लेकिन फिर भी मैंने डाल दिया क्योंकि मेरा पहला टाइम था मतलब आई वॉज क्रिएटिंग माई विजन बोर्ड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, ठीक है। सो आई हैड फ्यू थिंग्स इन माई माइंड while I was making this to come true. So in this video I'm going to specifically be talking about the things that have come true through this vision board in 2025, and the things that has not come true
but which I'm definitely carrying forward to 2026. Get straight into the video and see what all things came true from my vision board and what are the things that I'm going to carry forward in 2026. The first picture that I put, that I started my vision board with, was a picture of Ganu Bappa here, right here. I wanted to celebrate Ganesh Chaturthi so much. Like, Ganu Bappa is really my favorite. All gods are my favorite, but I have this slight little soft corner for Ganu Bappa. So गन्नू पप्पा इज़ माई फेवरेट. मैं पिछले साल भी गणपति जी बैठाए थे, इस साल मैंने अपने घर पे बैठाया. इट वॉज सरियल, सो दिस डिड कम ट्रू. ये मैंने यही सोच के यहाँ पे लगाया था कि मुझे अपने घर पे पहली बार गणपति जी बैठाने का मौका मिलेगा. सो दिस ईयर फ्रॉम इंस्टाग्राम, सो आई विल कंसिडर इट पार्शली डन. ठीक है, जितना मैंने सोचा था उतना नहीं हुआ, लेकिन हाँ ठीक है, हुआ कुछ हद तक. सो इट इज़ समथिंग विच इज़ ट्रू. 21st बर्थडे का मैंने यहाँ पे ऐसा वो लगा हुआ था कि आई वॉन्टेड टू सेलिब्रेट माई 21st लाइक टू बी अ रियली मेमोरेबल डे, एंड इट वॉज इंडीड अ मेमोरेबल वन. आई ऑलवेज चेरिश जो चीज़ यहाँ पे. और मैं अगर हो पाएगा तो आई ऑल्सो अटैच द फोटोज साइड साइड में, जो तुम्हें लगे कि हाँ भाई सच कह रही है लड़की. तो आई पेस्टेड दिस फोटो ऑफ अ गर्ल ड्राइविंग अ BMW कार. इट ट्रस्ट मी, यही सोच के रखा रहा था कि इस साल मैं BMW खरीद लूँगी अपने लिए, लेकिन वो BMW तो पॉसिबल ऑब्वियसली नहीं हो पाया भैया, उसके लिए इतनी मेहनत चाहिए. इट मेंट टू लर्न ड्राइविंग. सो या ड्राइविंग इज पॉसिबल नाउ बिकॉज आई लर्न ड्राइविंग. मतलब आई वेंट टू अ ड्राइविंग स्कूल. प्रैक्टिस अभी भी बाकी है, ड्राइविंग आ गई है, चलाने गाड़ी आ जाता है, गाड़ी दे सकते हो तुम लोग मुझे. ठीक है, फिर यूट्यूब का लोगो लगा हुआ था यहाँ पे. तो यूट्यूब का लोगो लगा हुआ था कि आई वांटेड टू स्टार्ट यूट्यूब डेलिबरेटली. वो चीज़ें हो गई, और यहाँ पे इफ यू लुक क्लोजली मैंने टिक लगाई है चीज़ों पे जो हुई है, और तभी मैं ये वीडियो बना भी रही हूँ. बिकॉज अगर नहीं इतनी सारी चीज़ें पूरी हुई होती तो मतलब मैं नहीं बनाती है वीडियो ऑब्वियसली. जिसको यूट्यूब के बाद आई एम सो कनेक्टेड टू माई फैमिली मेम्बर्स. इसका तो मतलब तुम लोगों को मुझे नहीं लगता कि ऐसा प्रूफ देने की ज़रूरत भी है, क्योंकि मेरा मोस्ट ऑफ द वीडियोज़ आर रिलेटेड टू देम. सो आई एम एंड आई वॉन्ट टू बी दैट क्लोज फॉर एवर एंड एवर. तो इसीलिए मैंने एक ये फ़ोटो डाली थी जिसमें आई वॉन्टेड ऑल माई फैमिली मेम्बर्स टू कम एंड गेट अ डिनर डन टुगेदर. सो दिस इज़ अ कैंडल लाइट डिनर थिंग हैपनिंग. और ये भी चीज़ सच हुई है. और मुझे मतलब इतना मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि जैसे ये फ़ोटो लगी हुई है ना, कि दैट इट इज़ क्लिक्ड फ्रॉम अ परस्पेक्टिव. जो यहाँ पे मेन आदमी बैठा हुआ है एंड वो फ़ोटोज़ ले रहा है. सो मेरे साथ एकदम एग्जैक्टली सेम चीज़ हुई है. अगर मैं लगा पाऊंगी तो आई डेफिनेटली पुट दैट वीडियो ऑल्सो, अगर मेरे पास होगी तो. सिल्वर बटन की फ़ोटो लगाई थी. मुझे लगा था मैं वीडियो डालूंगी यूट्यूब पे और यूट्यूब वाले मुझे सिल्वर बटन भेज देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. उसके लिए भी मेहनत चाहिए भाई. तो दिस इज़ अ थिंग विच आई एम कैरिंग फॉरवर्ड टू 2026. और मेरी ऑडेसिटी देखो, मैं सिल्वर बटन तो लगा ही थे एक साल के लिए, मैंने गोल्ड बटन भी लगा दिया था. भाई सिल्वर आने के बाद 3 महीने बाद तुरंत गोल्ड, ऐसा भी नहीं हुआ. सो दीज टू आर नेक्स्ट ईयर कैरीड फॉरवर्ड. सो आई एम कैरिंग फॉरवर्ड दीज टू इमेजेस टू नेक्स्ट ईयर. ऑल्सो मुझे चाहिए था कि मेरी गूगल में इंटर्नशिप लग जाए. इतनी अनरियल हूँ ना मैं. तो मैं चाहती थी भाई, क्या चाहा भी नहीं सकता कोई गूगल में इंटर्नशिप. मुझे चाहिए था गूगल में इंटर्नशिप लग जाए मेरी. क्या इसमें बड़ी बात है, कोई हंसेगा नहीं इस बात में. ठीक है, लेकिन वो भी नहीं हो पाया क्योंकि शायद मैं उतनी लायक नहीं हूँ अभी. स्टार्स मैंने बहुत सारे, ये ना थोड़ा डैमेज सा हो गया था, इसलिए मुझे साल के शुरुआत में बहुत सारे फ्लावर्स मिले थे, फिर साल के अंत तक मुझे कोई फ्लावर नहीं मिले. तो मिले इन द सेंस कि अब लोग अपना कचरा दिमाग लगाएंगे कि भाई कौन दे रहा है इसको फूल. तो मिले इन द सेंस कि पहले मुझे बहुत सारे फ्लावर्स मैं खरीद लेती थी जब मैं दिल्ली में थी. अब बनारस आने के बाद भी खरीद सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे बहुत दूर दूर है जगहें. मतलब बहुत फ्लारिश बहुत दूर दूर रहता है. वहाँ पे मेरे एकदम घर के पास में, तो मैं जाके खरीद लेती थी. लगाया था वो था एक फ़ोटो ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल, विच बहुत हद तक पूरा हो गया. ऑल थैंक्स, क्योंकि मैं घर आ गई. अगर मैं घर नहीं आती तो मुझे नहीं लगता कि ये भी पूरा होता. फिर मैंने एक फ़ोटो लगाई थी ग्लो अप की. तो मुझे नहीं पता मेरा ग्लो अप हुआ है कि नहीं, लेकिन आई एम हैप्पी विथ वट एवर प्रोग्रेस दैट आई हैव मेड फॉर माई सेल्फ. ठीक है, एंड नेक्स्ट हाँ, मैंने बहुत सारे फ्रूट्स खाने का सोचा था, विच इज़ ऑल्सो कितनी मैं अगर अभी इसको रिव्यू करने बैठूँ ना तो मैं खुद को बहुत बड़ा कुछ कहना चाहूँगी इस पे कि भाई फ्रूट खाने को ये मेरा मिशन था. मैं फ्रूट खाऊंगी 2025 में. ठीक है, लेकिन गुड
इट इज़ अ गुड थिंग. एवरीवन केयर कंसिस्टेंटली. पता नहीं रिजल्ट दिख रहा है नहीं दिख रहा है, लेकिन आई डिड माई स्किन केयर कंसिस्टेंटली. फिर आई ऑल्सो पुट दिस इमेज ऑफ अ गर्ल विटनेसिंग आईफिल टावर. मुझे पेरिस जाके आईफिल टावर देखना था. इसी साल देख रहे हो तो मेरा विजन देखो तो मेरा, समझ रहे हो, एक ही साल सब करना था मुझे. तो मुझे इस साल जाके वो देखना था आईफिल टावर अकेले. तो आईफिल टावर इट डिड नॉट हैपन. आई कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर. फिर आई वांटेड टू ट्रैवल अ लॉट दिस ईयर. ट्रैवलिंग करना चाहती थी. आई डिड ट्रैवल फ्रॉम दिल्ली टू माई होम टाउन वंस. लेकिन ठीक है उतना चलता है मतलब. और योगा स्टार्ट करना था मुझे. योगा वो भी नहीं हो पाया. नेक्स्ट ईयर कंटिन्यूइंग माई योगा क्लासेस. फिर व्हाट डिड आई पुट नेक्स्ट. आई पुट दिस हार्ड वर्किंग गर्ल सॉर्ट ऑफ अ इमेज कि वो बहुत पढ़ रही है और बहुत मेहनत कर रही है और उसको बहुत मेहनत का फल मिल रहा है. तो दिस ईयर आई डोंट नो वेदर आई स्टडीड हार्ड इनफ, लेकिन हाँ मैंने मेहनत करी है फॉर माई सेल्फ. आई वोंट डिनाई दिस फैक्ट कि मेरे लिए आई फील कि मैंने अपने हद तक मेरे से जितना मेरा मेंटल कैपेसिटी ने अलाउ करा है, जितना मेरा फिजिकल एबिलिटी रहा है, उस वहाँ तक मैंने आई थिंक आई गेव माई 100%. सो आई डिड वर्क हार्ड दिस ईयर एंड इसी का रिजल्ट है दैट आई एम ग्रेजुएटेड. दीज टू आर चेकलिस्ट. एंड फिर मैंने इस पे लगाया था बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी, जैसे कि आई एम अ मैग्नेट फॉर माई ड्रीम्स एंड गोल्स यहाँ पे लिखा हुआ है. तो वो भी मतलब मुझे लगा कि आई हैव अट्रैक्टेड थिंग्स तो टूवर्ड्स माई सेल्फ इन अ पॉजिटिव सेंस. whether people have gone from my life, they've entered, they've all been there for a positive time period and I cherish every moment that I've spent with them. बहुत आई फैमिली की फ़ोटो लगाई थी, ये भी नहीं हो पाया. गिटार प्ले कर रही है. इट मेंट कि मैं गिटार सीखूँ या कोई भी ऐसा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सीखूँ क्योंकि म्यूज़िक फैसिनेट्स मी अ लॉट. तो मुझे लेकिन मैंने सोचा है कि मैं तभी डालूँगी जब मैं प्रॉपर सीख जाऊँगी बजाना. ठीक है. फिर मैंने बहुत सारे मेकअप्स की फ़ोटो डाली थी यहाँ पे कि मुझे बहुत सारा मेकअप ख़रीदना है, स्किन केयर ख़रीदना है. स्किन केयर तो चलो जब जब ख़त्म हुआ है तब तक मेरे पास आ गया है. और शिव जी को मैंने यहाँ पे डाला था कि आई वांटेड टू वर्शिप शिव जी. ही इज़ ऑल्सो लाइक पहले पप्पा की पूजा फिर पप्पा की पूजा ऐसा करके ऐसा करके. तो हाँ ये मैंने कॉपी कर लिया किसी पिक्चर से. ठीक है यार चलता है इतना तो. फिर मैंने बहुत सारे गिफ्ट्स की फ़ोटो डाली थी. मुझे मेरे 21st पे बहुत सारे गिफ्ट्स मिले थे और आधे से ज़्यादा गिफ्ट्स तो तान्या भाभी ने दे दिए थे. तो ये सारी चीज़ें. नो प्रोक्रेस्टिनेशन मैंने इसमें मेंशन करा था एंड विच इज़ वेरी ट्रू. मतलब इस साल मैंने मुझे जितना ध्यान में है इस साल मैंने उतनी चीज़ें प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करी है एंड दैट इज़ अ गुड थिंग दैट आई एम कैरिंग फॉरवर्ड. फिर मैंने बहुत ही कॉर्पोरेट ऐसा बॉसी काइंड ऑफ लुक्स डाले थे बिकॉज आई वांटेड टू एंटर कॉर्पोरेट दिस ईयर, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं हो पाया. कोई नहीं, बट वी विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स इट. एंड देन मैंने एक लड़की लगाई थी यहाँ पे. लड़की मतलब मैं ही थी ये जो कॉन्सर्ट अटेंड कर रही थी क्योंकि मैंने आज तक कोई कॉन्सर्ट अटेंड नहीं करा है. तो मैंने कॉन्सर्ट तो अटेंड करा अपने कॉलेज का. अमन जाजी करके एक सिंगर है हरियाणा का. आई गेस ही इज़ अ वेरी फेमस सिंगर. आई एम सो सॉरी दैट आई डोंट रियली knew him back then, but now I know him. So yeah, I did attended a concert of Aman Jaji, which was not what specifically that I meant. Like it's ठीक है. With that being said, I think vision boards are really true. It does affect your entire year. So for me, it is a go-go situation. Like you should always be creating a vision board. It's not that कि मैंने एक बना लिया तो मैं तुम लोगों को मोटिवेट कर रही हूँ. नहीं, मैंने बना के एक साथ एक्सपीरियंस करके देखा. इट्स ऑलमोस्ट दिसंबर 9th डे एंड वी आर ऑलमोस्ट एंडिंग द ईयर इन 2021 days. सो आई फील इट. लाइक पहले मुझे इतना रियलाइज़ नहीं हुआ, लेकिन वंस आई लुक एट दिस बोर्ड एंड टेक द थिंग्स दैट हैव पेस्टेड कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हुई हैं. So that is pretty much it about my vision board, about what came true in my life this year and what all things that I'm carrying forward to next year. ये सारी चीज़ें थी विच आई डिड फॉर माई सेल्फ इन 2025 विच केम ट्रू बेसिकली थ्रू माई विजन बोर्ड. एंड आई होप कि अगर कोई ये वीडियो देख के विजन बोर्ड बनाने की सोच रहा है तो उसके लाइफ में भी उसके विजन बोर्ड पे चिपकी हुई सारी चीज़ें सच हो जाए. एंड yeah, I'll be making
a vision board for 2026. लेकिन I'll not be revealing it until it's the year end of 2026. So, okay, I hope you enjoyed watching this video. And if you did, do not forget to like, share, comment, subscribe to my channel. And thank you for staying. Thank you for watching. Okay, bye.